Ramesh Chaitanya, and I'll be presenting the topic competency mapping and the concept of assessment centers of human resource planning. By the end of the session, we'll be knowing about these: understanding competency mapping, know types of competencies, learn steps of competency mapping, understand assessment centers, see how both support HR decisions. So, the very first thing, what is competency mapping? So, competency mapping is the process of identifying the skills, knowledge, behavior, and ability that employee need to perform job effectively. So, in simple word, it asks what quality does a person need to success in a job, and does the employee have those quality or not. So basically, competency mapping एक जगह है जो कि इट्स नॉट अ फिजिकल प्लेस, बट ये आइडेंटिफाई करता है एक इंसान की स्किल को, नॉलेज को, बिहेवियर को और एबिलिटी को. तो अगर हम एक हॉस्पिटैलिटी एग्जांपल लें इसके अंदर, लाइक कैन एनीवन टेल मी लाइक कि एक एचआर एक कोई भी एसोसिएट को हायर करता है तो क्या स्किल्स देखता है उसके अंदर? Communication, ओके, problem solving skills, customer handling. absolutely. So like if we take example of front office, so person required competency may include communication skills, customer service, problem solving, grooming etiquettes, and computer skills as well. Obviously you are working with front office, so you need these type of skills. So in the next slide we'll be learning about the 5 key steps in competency mapping. So very first thing is we have to identify future skills. So this determined market trend, this is based on market trend, like what are the मतलब कि ज़रूरत के साथ टाइम के साथ और ज़रूरत और जो स्किल्स है वो चेंज होती रहती हैं. एक टाइम पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था और इस टाइम पे होता है, तो वी नीड दिस इन अ पर्सन. दैट पर्सन शुड नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग. Second thing, assess current skills. In this, they measure capability using interview, test, and self-assessment. So these 3 things. These tells like what person is actually. So we cannot judge person on a single interview. So these are the type of assessments they made. They take tests. They checks the capability by taking interview. Third, map to roles. These create detailed competency framework by correlating required skills to specific job roles and levels. So this thing, if we are talking about map to roles, स्पेसिफिक जॉब्स के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है. सो हर जो प्लान्स है वो अकॉर्डिंगली बनाए होते हैं. फोर्थ, डेवलप टारगेटेड प्लान्स. इसके अंदर प्लान्स जो है बहुत ही टारगेटेड होते हैं. प्लान्स पहले से ही सेट होते हैं, किस टाइप की, किस तरीके का इंटरव्यू, किस तरीके का असेसमेंट हम किसी इंसान से लेने वाले हैं, और हर चीज़ हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती है. गेस्ट हैंडलिंग हर एक डिपार्टमेंट के लिए स्लाइटली डिफरेंट होती है. और हम बात करें चारों डिपार्टमेंट की, तो किचन डिपार्टमेंट का सबसे मतलब कम इंटरेक्शन होता है गेस्ट के साथ, तो उनके लिए चीज़ें अलग होंगी. एंड द वेरी लास्ट थिंग इज रिव्यू एंड अपडेट. सो ये सब फाइनली ये मेजरली सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जो बेस्ट पार्ट ये है कि फाइनल जो रिव्यू जो होता है वो बहुत कुछ बताता है कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए, किस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ पे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ परफेक्ट है. सो दिस मतलब ये चीज़ जो परफेक्शन की तरफ लेके जाती है इंसान को. सो इन दिस स्लाइड वी विल बी नोइंग 3 डायमेंशन ऑफ कॉम्पिटेंसी मैप. सो वेरी फर्स्ट थिंग is these are 3 type of competencies which we look into. So number 1 is technical competency, second is behavior competencies, and third is leadership competencies. So technically, so very first thing, if we are talking about technical competencies, so इसके अंदर अपने जॉब स्पेसिफिक स्किल देखते हैं, सच एज प्रोग्रामिंग, लैंग्वेजेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और स्पेशलाइज्ड मशीनरी ऑपरेशंस.
इसके नाम से ही पता चलता है कि व्हाट वी लुक इनटू अ पर्सन इफ वी टॉक अबाउट टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज. एंड सेकंड थिंग इज बिहेवियर कॉम्पिटेंसी. इसके अंदर अपन इंसान का बिहेवियर देखते हैं कि हाउ ही शी गोना बिहेव, और इसके अंदर एटिकेट्स चेक होती है, ग्रूमिंग स्किल्स भी चेक होती हैं, और किस तरीके से इंसान बात कर रहा है बेसिकली उसकी जो पर्सनल चीजें हैं वो सब चेक वो सब चेक होती है. एग्जैक्टली. लीडरशिप कॉम्पिटेंसी. इसके अंदर ये चीज़ चेक होती है कि एक इंसान किस तरीके से लीड करने वाला है, लाइक हाउ they gonna react in certain situation. So nobody is like born manager. Every person learn from things. So yeah, this is the thing. तो आप एक एग्जांपल दीजिए फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, एनी डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जिसमें हम ये चीज़ें देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखेंगे उसमें? एनी डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. So we'll take example of front office. So these three things, you know, is very necessary. These three things are very necessary in like. नहीं तो यू हैव टू डिफाइन कि टेक्निकल में क्या देखेंगे, फिर बिहेवियर में क्या देखेंगे, लीडरशिप में क्या देखेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लेट्स से एफओ पर्सनल. Okay. So technically अपने एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट के अंदर if you talk about technical skills, तो अपन skills देखेंगे कि how the person, you know, how efficient he she is to, if we talk about check-ins, like how fast he she take the check-in, like बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दो, if we talk about two things here, the number one is, even I saw a few people who are, you know, very fast on the keyboard. They know very, you know, very much shortcuts, like how to open this system, how to open that system, and some people are going manually on that system. So if we talk about technically, so I would say this thing. And ओनली विद सिस्टम, ओनली विद चेक इन चेक आउट, बाकी हैंडलिंग सिनेरियोस, हैंडलिंग सिचुएशंस. so it depends on behavior as well. Like few people get, you know, frauds. yeah, few people always, you know, काफ़ी लोगों की टॉलरेटिंग जो पावर होती है काफ़ी कम होती है. मेरे नॉन में कुछ लोग हैं कि So that would be technical or behavioral? behavioral. If I, मतलब according to me it's behavioral. And third thing is leadership competency. कोई भी problem एक इंसान के पास आ रही है, so how they react on that and what is the solution. So जितना बेहतर solution होगा उतना अपन ये कह सकते हैं कि the वैसे person सॉल्यूशन होगा या इनिशिएटिव लेगा. लीडर का केवल ये कर्तव्य नहीं होता है कि वो समाधान दे. समाधान दे, but ये भी दे दे कि साथ में पहला कदम बढ़ा दे, ऐसा ना हो कि बैठा ही रहे. yeah. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टरवर्ड्स. So moving to the next slide. So what is assessment center? We'll be knowing what is assessment center. So assessment center, it is not a physical place but a systematic process used by HR to evaluate person's skill, behavior, potential through multiple tests. So assessment center बस एक physical place नहीं है, but ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि HR यूज करता है पर्सन की स्किल जानने के लिए, बिहेवियर जानने के लिए और पोटेंशियल जानने के लिए कि एक पर्सन, बिकॉज वी कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन अ सिंगल इंटरव्यू, बट हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी होती है. इंटरव्यू से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है कि इंसान क्या बोल रहा है, बट सर्टेन टेस्ट और रोल प्लेस, इनसे पता चलता है कि व्हाट पर्सन एक्चुअली इज. And if we take example of hotel industry, so काफ़ी सारे होटल जो है वो if we talk about a certain program like management training, ये सबसे हाई प्रोग्राम है अगर तुम्हें मतलब किसी भी जॉब के अंदर स्टार्टिंग लेनी है. So candidates go through group discussion, role plays, case studies, personal interviews, etc. things. So these all things tells about the personality, skill and leadership quality as well. Very next slide will tell why use assessment center in competency mapping. So assessment center डेप्थ और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि अदर मेथड नहीं कर पाते.
other method, if I talk about like only single interview or single test, so we'll be having four things. First is objective evaluation. These are the four benefits actually कि assessment center क्या है और उसके benefit क्या हैं. So first is objective evaluation. It provides objective standardized evaluation of critical competencies going far beyond subjective resumes or singular interviews. Next thing, it actually measures actual behavior. Focus is on measuring observable behavior and skill highly relevant to predicted performance in the actual job role. Third, reduces bias, ensures fairness and consistency by applying uniform exercises and utilizing multiple trained assessors for each candidates. बायसनेस एक्चुअली रिमूव करता है क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग टाइप के टेस्ट लेता है तो सबके लिए ये चीज़ इक्वल होती है. And rich feedback. Feedback is always necessary as I'm going to get feedback after this PPT. So this will tell a lot about the person, like where to work, where to speak, what to speak and what not to speak. Okay, इससे पहले बार स्लाइड में जाना है, इससे पहले बार तो असेसमेंट सेंटर बेसिकली करता क्या है? If you can give in a simple words. सर अगर अपने सिंपल वर्ड में बात करें, असेसमेंट सेंटर एक तरीके का प्लेस है जो कि फिजिकल नहीं है, बट उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक पर्सन को टेस्ट करती हैं बिफोर गेटिंग इनटू अ जॉब, बिफोर अ पर्सन गेटिंग इनटू अ जॉब. तो क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर सर्टेन इंटरव्यूज होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं जिससे कि पर्सन की स्पीकिंग स्किल्स और कि पर्सन एक इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशन तो पता चलता है कि कितना जल्दी एक इंसान रिएक्ट कर पाएगा चीज़ों को. सो एक सिंपल इंटरव्यू से इट्स लाइक कि अपना इंटरव्यू चल रहा है और एक इंसान कुछ क्वेश्चन पूछेगा और हमने कुछ आंसर दे दिया, उसके बाद एक ऑफर लेटर मिल जाएगा. सो वो सिर्फ इतना बताती है कि इंसान क्या बोल रहा है, उसकी अंदर से पर्सनैलिटी निकल के बस इन चीज़ों के थ्रू ही आ पाती है. क्या चीज़ है वही पूछ रहा हूँ. क्या चीज़ स्पेसिफिकली, क्या स्पेसिफिकली चीज़ें हैं वो? What are the methods through which we assess a candidate? So these are the Speak out. No, don't see that. Just speak out. like group discussion, role plays, case studies, personal interviews. Like after all these round एक रिव्यू होता है जिसकी वजह से मतलब पता चल जाए कि what are the merit and demerit of a person. ठीक ठीक आगे. Designing an effective assessment center. So we gonna know about कि एक assessment center डिज़ाइन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. So number one is we have to define target competencies. Like this clearly specify the competencies to ensuring they align directly with specific job roles and overall organizational goal. हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती है जो कि स्पेसिफाई करती है उसी डिपार्टमेंट के लिए. Number second, we have to select appropriate exercises. If we talk about front office, like हम एक फ्रंट ऑफिस एसोसिएट को हम ये नहीं बोल सकते कि तू जाके बैट बना ले. अपनों को appropriate exercise चाहिए होगी. Like we can test person, like अपन उनको रोल बेस के अंदर उतार सकते हैं कि जाइए आप कैसे बात करिए, उससे पता चलेगा कि किस तरीके से जो कस्टमर हैंडल कर पाता है. Number third, train assessors consistently. Ensure all assessors are rigorously trained to observe, rate, and record candidate behavior consistently using validated metrics. So in this, इसके अंदर हर मतलब कह सकते हैं कि जैसे कुछ जगह पे बड़ी सिस्टम होता है कि कोई इंसान लाइक इफ यू टॉक अबाउट ओपरोइज, सो उसके अंदर कोई भी नया एसोसिएट होता है उसको सिखाने के लिए एक पर्सन दिया जाता है कि यू हैव टू शेडो दिस पर्सन, उस इंसान से सीखे और वो इंसान आपको जो है
कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से सीख पा रहा है, क्या बिहेवियर है इस इंसान का, कितना पंचुअल है। सो ये चीज़ रहती है। तो उसके अंदर वो इंसान भी ट्रेन होना चाहिए ताकि उससे पता हो कि किस मेजर्स और किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और किन चीज़ों पे अगर वो गलत है तो सिखाना है। And last one is we have to utilize result. So apply the data collected to make informed hiring and promotion decision, pinpoint development needs and structure career pathing. So एट दी एंड फिर इन सबको मिला के हमको रिजल्ट जो यूटिलाइज करना पड़ता है, पता चल जाता है कि इंसान कितना ट्रेन हो चुका है या फिर कितनी ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत है। सो इस तरीके से फिर फाइनल स्टेप में अपन हायरिंग और प्रमोशन के डिसीजंस लाते हैं। So if we talk about real world impact in competency mapping and assessment center, so number one is improved recruitment. इन चीज़ से रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड जो लोग हैं वो मिल पा रहे हैं इस चीज़ की वजह से। और नंबर सेकंड एनहेंस डेवलपमेंट भी एनहेंस हो गई है। एक इंसान का इस असेसमेंट सेंटर के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पा रही है, इंसान की एक्चुअल पर्सनैलिटी निकल पा रही है। Solid succession planning, which provide data to identify and nurture high potential talent early, ensures leadership pipeline readiness. So इस चीज़ से एक इंसान के पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है, टैलेंट को हम जल्दी पहचान ले रहे हैं कि दिस पर्सन और दिस वन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर वी कैन से, और वो गोना लीड द टीम। Number 4, reduce turnover, ensuring the right fit and readiness for roles increases job satisfaction, organizational performances and retention rates. So इन चीज़ से हमें पता चल रहा है कि कौन सही इंसान है सर्टेन जॉब रोल्स के लिए, जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज करता है। The integration of competency mapping and assessment centers transform talent management for reactive process into a provocative strategic advantage. So इन चीज़ों से पता चलता है कि असेसमेंट सेंटर और कॉम्पिटेंसी मैपिंग कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है एक पर्सन को हायर करने के लिए। The next slide will tell case highlight practical application in certified program. So number one is framework design mastery. So participants gain the expertise to independently design robust competency framework tailored to diverse business needs. तो इसके अंदर एक इंसान को एक तरीके से कह सकते हैं कि मास्टरी की जाती है या फिर उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बिजनेस नीड को बहुत मतलब फुलफिल कर सके। ये क्या है, केस हाइलाइट? व्हाट इज केस हाइलाइट? ये तीन चीज़ें हैं जो मतलब असेसमेंट सेंटर और इन चीज़ों से मतलब किस केस की हाइलाइट? सर इट्स लाइक ओवरऑल कि एक्चुअली क्या मतलब रिजल्ट आता है। सर्टिफाइड प्रोग्राम क्या हुआ? सर्टिफाइड प्रोग्राम लाइक असेसमेंट सेंटर्स, उसके अंदर सर्टिफाइड प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करी, HOTs की बात करी। थोड़ा इसका टाइटल जो है आपका वो थोड़ा वो है क्या लगता है? Second one is integrated HR strategy. So its focus is placed on integrating competency mapping seamlessly across core HR functions, recruitment, performance management and succession planning. So देखा जाए तो ये HR की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिससे कि रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है। Third one is practical skill building. Learning emphasizes hand-ons, practical exercises and real-time feedback loops essential for achieving skill mastery and immediate applications. So इससे पता चलता है कि जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं और जो रियल टाइम फीडबैक्स हैं वो कितने नेसेसरी हैं कोई भी स्किल को अचीव करने के लिए या फिर कोई भी स्किल में सुपीरियर बनने के लिए, और ये चीज़ें हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए।
and this is the conclusion of the topic. Can anyone conclude this topic for me? Like, what have you learned in this PPT? सो बेसिकली मतलब जितना मैंने सीखा कि हर बंदे को मतलब उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं. सिर्फ सिंपल इंटरव्यू से हम पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है जॉब के लिए. अलग अलग इंटरव्यूज मेथड्स और जैसे जो अलग टेस्ट होते हैं तो उससे पता चलता है स्पेसिफिकली कि किस चीज़ में अच्छा है, ये किस चीज़ में ये इतना अच्छा नहीं है और उसको फिर कैसे इम्प्रूवमेंट उसमें करी जा सकती है. और प्लस जो फिर हर इंसान में टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए और बिहेवियर स्किल्स भी होनी चाहिए. प्लस वो फिर और मैटर करते हैं कि स्पेसिफिक उसका जॉब कैसा, मतलब अगर जैसे फ्रंट ऑफिस की तूने कहा तो उसमें खासकर मैटर करती है टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी, मतलब बाकी दोनों भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर टेक्निकली अच्छी नहीं होगी तो फ्रंट ऑफिस बैठ के काम कैसे करेगा वो. सो Thank you, Manav, for concluding the topic for me. Thank you, sir. Thank you, everyone. Okay, thank you. Let's clap for him.